अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आपकी बैनुल अक़वामी आवाज़ ऑस्ट्रेलिया से। खुश रहें, आबाद रहें। और सब भूल गए हरफ़े सदाकत लिखना, रह गया काम हमारा ही बगावत लिखना। आज मेरे साथ इंसाफ के वो दो बड़े बुर्ज हैं जो कि एक रिटायर हो चुके हैं मगर अभी भी इसी फील्ड में हैं और लिखते हैं। इनका कलम चलता है और हम जैसे लोग उससे फायदा उठाते हैं और अपने लिए जिला दैट गिव्स अस अ लाइट फॉर फ्यूचर। और सर सदीक हैं यहाँ पर जी। ये अजहर सदीक एडवोकेट, Muhammad Azhar Siddique, Advocate, Supreme Court, and Chairman, Judicial Activism Panel, anchor and expert, article writer in Nation. He wrote a lot of articles, social activist, also raised the cause of Pakistan in international cause of justice, legal advisor of former Prime Minister Imran Khan and Pakistan Tehreek-e-Insaf, disqualification of Yusuf Raza Gilani, he has a name there, Thosha Khana cases, record production from the Lahore High Court, Lahore. Thank you very much, sir, for joining me. As you know, there is a turmoil in Pakistan, and on the other hand is former Chief Justice of three high courts of India, Justice of Supreme Court, and he's chairman of Press Council of India. Strong voice in the world of justice. Thank you so much, sir, for giving me time. How are you? Fine, thank you. That's good. Welcome to my show. Thank you for giving your precious time to me. So, so my first question, I will start with um, Sir Azhar, that you know what's happening in Pakistan, sir. Elections का जो हो रहा है, rigging and elections has been done. Still, there is a turmoil. There 3-4 days. What is your opinion as well as constitution is concerned? As you know, the courts are also biased, to our understanding. Thank you, Sajida. The special regards to Markandey Katju sahab. It's an privilege to be here with him in your program. The question is very simple. Our constitution provides a mechanism to dichotomy of powers and on the same time it's a contract and it's been governed through a democratic process, a government which has to be selected after every 5 years. And as far as the recent scenario is concerned, Imran Khan and his allies has dissolved the National Assembly and as well as the Provincial Assembly in accordance with law. Two assemblies were dissolved under the power to dissolve before the tenure of 5 years. And under the law, under the constitution, election has to be held within 90 days. It was not done. Constitution stand violated. Supreme Court has passed an order, but no action has been taken therefore. And on the same time, because we are not holding, when a vote of no confidence was moved, the vote of no confidence was rejected and the assembly was dissolved. It was challenged and the Supreme Court has dissolved the assembly. Thereafter, our members has put as the condition in order that the ex regime should pressurize and as far as the National Assembly is concerned, they are going to dissolve it. But no positive steps were taken, and Pakistan Tehreek-e-Insaf has started at protest on streets and by raising a voice. And in lieu whereof, number of fake and fabricated cases were registered. Election Commission started a number of inquiry or investigation with reference to provident funding, and on the same time, Ucha Khana case
election commission contempt, and by taking away a party symbol. Now, recently election has been held. It was not free, fair, and transparent. That was in violation of Article 218, sub-Article 3, uh, as as the votes which were backed up have been changed by the RO and is a law for which we have raised that matter before a different court and now waiting for a justice. But as far as the elections are concerned, they are not free, fair, and transparent. Okay, sir. So, what do you think then? If they're not transparent, what's going to be happen, sir? पहले आसान लफ्जों में मैं समझा दूं इमरान खान डेमोक्रेटेड इलेक्टेड वजीर आजम थे 5 साल के लिए इलेक्ट हुए इलेक्शन में जब हालात देखे कि बीच में कंस्पिरेसी चल रही हैं हुकूमत को गिराने की 3 कोशिशें हो चुकी तो फिर असेंबली डिसॉल्व की गई और इसलिए कि तहरीक अदम एतमाद लाई गई लोगों को खरीदा गया वोट परचेज किए गए और असेंबली डिसॉल्व कर दी गई फिर पंजाब असेंबली भी बीच में डिसॉल्व करने की कोशिश की गई लेकिन उस असेंबली को सामने रखते हुए मामला कोर्टों में गया कोर्टों में चैलेंज किया लेकिन नेशनल असेंबली जो है तो नो कॉन्फिडेंस डिसॉल्व होने की वजह से रिस्टोर हो गई फिर 2 असेंबलियां डिसॉल्व की गई 90 दिन में इलेक्शन कराने थे इलेक्शन हो ना सके और अल्टीमेटली जो बात है वो साफ शफाफ इलेक्शन कराए जाए एक्स चीफ जस्टिस उमर अफ्ताब बंदियाल रिटायरमेंट के बाद मामला आ गया जस्टिस काजी भाई साहब के पास जस्टिस काजी भाई साहब के दौर में हमने देखा कि बहुत से मामला ऐसे आए कि बहुत से इशू आए आइन और कानून की पासदारी नहीं की गई 90 दिन में इलेक्शन नहीं कराए गए केयर टेकर सेटअप जिस तरह चुना गया उसमें साफ शफाफ इलेक्शन कराने थे वो इलेक्शन नहीं करवाए गए और अल्टीमेटली बहुत सी शिकायत आई इलेक्शन कमीशन की काबिलियत के सवाल आए जैसे मैंने पहले बताया कि जो तो हुआ ये कि इन चीजों को सबको सामने रखते हुए अब जब इलेक्शन कराए गए इलेक्शन से पहले प्री प्री पोल इस हद तक हो चुकी है कि यहाँ मौका नहीं दिया गया हालात ऐसे बनाए गए कि के रास्ते अपने चुने ऐसे गए कि आप अपने कैंडिडेट न खड़े कर सके पार्टी सिंबल ले लिया गया सिर्फ जी। यही नहीं है बहुत से काम ऐसे हुए कि जिनकी वजह से बहुत दिक्कतें मसाइल और परेशानियां हुई और अल्टीमेटली जो बात है वो क्या हुआ कि हमने फिर हाई कोर्टों में लेकर गए रिटर्निंग ऑफिसर ने रिजल्ट चेंज कर दिए और बहुत से एक्सटर्नल प्रेशर से इसकी वजह से और फिर हाई कोर्ट में जब मामला आया हाई कोर्ट तीन सुनेगा अब इसके हवाले से जितना प्री पोल ये पोस्ट पोल रिलीज जो है वोट डालने से लेकर फॉर्म 45 फॉर्म वो है जो वोट डालने के काउंट बताता है और उसका टोटल जो है ये भारत कॉन्स्टिट्यूशन का 47 है ये रिलेक्ट सिलेक्शन हो गए हमने इसको इलेक्शन कमीशन के सामने चैलेंज किया है तो इस वक्त प्रोसीजर इंडिपेंडेंट की 92 93 कह रहे हैं लेकिन 176 हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी वो छीनी गई हैं जाली वोट डाले गए हैं अब वो इलेक्शन कमीशन के सामने मामला है इलेक्शन कमीशन में एक एक मामला लेकर गए हैं कि वो रोजाना की बुनियाद पर क्या डिसाइड होता है जी, अच्छा। तो इलेक्शन कमीशन तो मगर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से कोर्ट्स ने इसको आगे इलेक्शन कमीशन में भेज दिया है। हाँ वो बुनियादी तौर पर वजह ये है कि इलेक्शन का प्रोसेस सारा जो है जब इलेक्शन पोस्ट इलेक्शन हो जाए तो वहाँ कोर्टों का ओपिनियन आर्टिकल 225 है कि पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो में इलेक्शन ट्राइब्यूनल में मामला जाता है इलेक्शन कमीशन के जरिए चैलेंज ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म देता है अगर अगर मैलाफिडी हो विदाउट जुरिसडिक्शन और कोई ऐसी एरर हो तो कोर्ट का इख्तियार मौजूद है लेकिन हमारे यहाँ कोर्ट्स रिलक्टेंट है इस मामले को लेने के लिए तो सर फिर गवर्नमेंट का आगे क्या व्हाट विल हैपन नाउ? इट विल टेक मोर टाइम, राइट? देखिए अपनी वजह ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म अंडर आर्टिकल 91 15 डेज के 15 दिन के विद इन स्पैन ऑफ 15 डेज इलेक्शन कमीशन हैज टू अनाउंस द फाइनल रिजल्ट्स now there are disputes which are pending the same has to be decided within a span of 15 days thereafter president is going to invite the regular session of the National Assembly, and on the same time, governors would call the session of Assembly जो इजलास होंगे इजलास में फिर पहले स्पीकर चुना जाएगा स्पीकर के बाद सूबों में चीफ मिनिस्टर चुने जाएंगे और वफाक में जो है नेशनल असेंबली में वजीर आजम चुने जाएंगे
Acha. So, sir, Markandey, now my question is to you. What is your opinion about, like you heard everything from Sir Azhar Siddique. So, what do you think that is the future of this election? देखिए, मैं थोड़ी गहराई में जाना चाहूंगा। पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि जो मुझे इंफॉर्मेशन मिली कि 80-90% पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान वाज सॉलिडरी विद इमरान खान, ये ओपिनियन पोल्स भी बताते हैं। तो अगर फेयर एंड फ्री इलेक्शन होते तो आउट ऑफ 266 सीट्स, in my opinion, PTI would have won about 200 seats. Okay. But it has won half that, 100 seats, which means अब वो फिर से वही PMLN और PPP यानी पुराना PDM ही फिर से कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी and इमरान खान will be kept out of power. अब जरा सा इसमें थोड़ा सा मैं गहराई में जाना चाहता हूँ, थोड़ा सा मुझे वक्त दीजिएगा विदाउट इंटरप्शन। देखिए, ये सब समझने के लिए पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड। दुनिया में क्या हो रहा है अभी? दुनिया में दो बड़ी बड़ी अलायंसेस बनी हैं। एक अलायंस है ऑफ यूएसए एंड यूरोप, ये एक तरफ है। उसके मुकाबले में दूसरी तरफ है रशिया एंड चाइना, उसका अलायंस। ये बेसिक कॉन्टेक्स्ट दुनिया में आजकल चल रहा है और उसी का रिफ्लेक्शन ये आपके पाकिस्तान में आ रहा है। कैसे? अब मुझे समझाने दीजिए आपको। देखिए, पहले तो पाकिस्तान वाज फर्मली इन द अमेरिकन कैंप। वो सारा अमेरिका उसको एड देता था, वेपन्स देता था, यानी इट हैड बिकम प्रैक्टिकली अ न्यू कॉलोनी ऑफ यूएसए। जैसा अमेरिकन ऑर्डर करते थे वैसा ही आपकी अमेरिकन गवर्नमेंट डेली मींस द पाकिस्तान आर्मी, दे आर रियल पावर इन पाकिस्तान। तो जो अमेरिकन गवर्नमेंट चाहती थी वैसे ही पाकिस्तानी फौज कर देती थी। जैसे फॉर एग्जांपल अमेरिकन गवर्नमेंट ने कहा कि भुट्टो को टांग दो क्योंकि ये हमारे खिलाफ हमारी बात नहीं मान रहा है, ये एटम बम बनाना चाहता है, न जाने क्या क्या रशिया चाइना की तरफ जा रहा है। तो जनरल जियाउल हक ने सलूट मारा, जी हुजूर, और उन्होंने फर्जी ट्रायल करके जुडिशियल मर्डर करा दिया भुट्टो का। जो अमेरिकन कहते थे आपकी फौज सलूट मार के ऑर्डर ओबे करती थी। अब जो बदलाव आया है, तब्दीली आई है, बड़ी भारी आई है, वो ये है कि अब चाइना भी उभर के आया एज अ सुपर पावर और वो इमीडिएट बॉर्डर पे है विद पाकिस्तान। अमेरिका तो दूर है। तो Chinese have penetrated deeply into the Pakistani economy and captured large part of the Pakistani market. एक फेयर्स कॉम्पिटिटर आ गया। अब देखिए, पाकिस्तान के एक मालिक नहीं है, अभी तक तो एक मालिक था अमेरिका, अब दो मालिक हो गए, यानी लाइक अ वुमन हैविंग टू हस्बैंड्स। अब किस हस्बैंड का ऑर्डर मानोगे भाई? यहाँ तो एक राइवल्स है दोनों एक दूसरे के। अब दो मालिक हैं पाकिस्तान के, अमेरिका और चाइना। वो भी मामूली पावर नहीं है, इट इज बिकम ऑलमोस्ट अ सुपर पावर। तो अब हुआ क्या कि आपके इमरान खान जो थे ये बहुत अमेरिका को क्रिटिसाइज करने लगे थे। इनका बयान होगा कि अमेरिका हैज डिस्ट्रॉयड अस। इनका इन्होंने कहा कि अमेरिका अमेरिकन पाकिस्तान रिलेशनशिप इज द मास्टर एंड स्लेव रिलेशनशिप, यानी हम उनके गुलाम हैं। और इन्होंने सख्त मजम्मत करी जो पाकिस्तानी ट्रूप्स को भेजा गया अफगानिस्तान ऑन द ऑर्डर ऑफ द अमेरिकन। फिर ये इमरान खान साहब, आपको याद होगा जब रशिया की लड़ाई चल रही थी यूक्रेन से, ये चले गए मॉस्को और उनसे कुछ समझौता किया सीक्रेटली। इस सब से अमेरिकन बहुत नाराज हो गए इमरान खान से एंड दे डिसाइडेड टू टॉपल हिज गवर्नमेंट। वो तो सब आपको मालूम है कि साइबर केस में चला। तो ये अमेरिकन ने डिसाइड किया कि इसको तो हम रहने नहीं देंगे, ये बहुत ही टिल्टिंग टू मच टुवर्ड्स रशिया एंड चाइना। तो इमरान खान was also forced to
going to the Russian and Chinese camp. अब देखिए जो लड़ाई नहीं है, मतलब मिलिट्री लड़ाई नहीं है, पीसफुल लड़ाई है between the two world alliances, America and Europe on one side and Russia and China on the other side. Up now Imran Khan is representing Russia-China alliance, whereas the American army is representing the US-European alliance. कैसे? अब देखिए ये सारे आपके जो आर्मी जनरल्स हैं, सारे आपके आर्मी जनरल्स हैं, they are all, they have been bought over इस तरीके से कि जो उन सब के बेटे बेटियां करीबी रिश्तेदार सबको वर्ल्ड बैंक में नौकरी दे दी गई, अमेरिका में विद अ ह्यूज सैलरी, या आईएमएफ में नौकरी दे दी गई विद अ ह्यूज सैलरी, या किसी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन में विद अ ह्यूज सैलरी, या हार्वर्ड या येल या किसी आईवी लीग यूनिवर्सिटी अमेरिका में उसमें एडमिशन विद फुल स्कॉलरशिप देके इन सब जनरल्स को खरीद लिया गया. they will do whatever they are told by Americans. और इनके बड़े बड़े ह्यूज बैंक अकाउंट्स हैं, ये सब करप्ट हैं, आप जानते हैं. इस पे आयशा सिद्दीका ने सब डिटेल में लिखा हो, कईयों ने लिखा है, ये जैसे जनरल बाजवा ने कितने बिलियन ऑफ डॉलर्स कमाए, सब गूगल में देख लीजिएगा, ये सब करप्ट है. तो दे हैव ऑल बीन बॉट ओवर बाय द अमेरिकन. तो जैसा ये अमेरिकन कहेंगे वैसा करेंगे. तो अब ये the Pakistani army represents the American European alliance, whereas Imran Khan represents the Russia-China alliance. ये this is उसका ही रिफ्लेक्शन आप देख सकते हैं इस चुनाव में. फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता तो 200 सीट पाता इमरान खान, मगर ये अमेरिकन व एडमेंट कि इमरान खान फिर से पावर में नहीं आना चाहिए, और उन्होंने हुक्म दिया आपकी आर्मी को, और आर्मी कंट्रोल करती है आपकी जुडिशरी, आपकी इलेक्शन कमीशन, सबको कंट्रोल कर देती है. क्योंकि एक कोई आपको बंदूक दिखा, जैसे कहते हैं ना पावर ग्रोज आउट ऑफ द बैरल ऑफ अ गन, एक आपको बंदूक दिखाएगा तो सारी आपकी इंडिपेंडेंस खत्म हो जाएगी. तो आर्मी हैज द गन, और आर्मी को ऑर्डर मिलते हैं वॉशिंगटन से, जो जैसा अमेरिकन कहेंगे वैसा करेंगे. तो अमेरिकन टोल्ड आर्मी कि किसी हालत में इमरान खान को दोबारा हुकूमत में नहीं आना, तो रिक करो. अब जब अर्ली काउंट हो रहा था तो इमरान खान की पीटीआई वाज लीडिंग बाय अ मैसिव अमाउंट. कितने 146 इतनी सीट पर लीड कर रहा था, जबकि ये लोग 35 या 40 सीट में थे, पीएमएलएन और पीपीपी. इमरान खान की पीटीआई वाज लीडिंग इन 145 सीट्स और समथिंग, जो मैंने देखा. फिर काउंटिंग वाज स्टॉप्ड. कई घंटों के बाद जब रिज्यूम हुआ तो सारी वो लीड खत्म कर दी गई, और मैसिव रिगिंग करके, और जहां वो 200 सीट पाता अब उसको सिर्फ 100 सीट मिली. ये दिस इज द रियलिटी ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन इन पाकिस्तान. ये कस के टकराव हो रहा है बिटवीन द अमेरिकन यूरोपियन अलायंस व्हिच इज कंट्रोलिंग द आर्मी एंड रशिया चाइना अलायंस जिसके साथ इमरान खान है. तो ये टकराव अभी चलेगा, क्योंकि ये दोनों बड़ी पावरफुल फोर्सेस है. रशिया और चाइना को आप कमजोर मत समझिए, ये भी एक सुपर पावर. तो ये टर्मोइल जो चल रहा है पाकिस्तान में, ये काफी अरसे तक चलेगा, और अभी कुछ नहीं कह सकते कौन किसकी जीत होगी इसमें. ये मेरा असेसमेंट है कि what is happening in Pakistan is a reflection of what is happening on a much bigger scale all over the world. जो वर्ल्ड कॉन्फ्लिक्ट चल रही है उसी का रिफ्लेक्शन आप पाकिस्तान के इलेक्शन और इलेक्शन रिजल्ट्स में देख सकते हैं. थैंक यू. सर अजहर, आपसे मेरा क्वेश्चन है कि आप समझते हैं कि जो नई गवर्नमेंट, जैसे ये मतलब रिगिंग हुई है और जो मेजॉरिटी पार्टी है, ऑब्वियसली उसे इलेक्शन मतलब जो भी हो रहा है, आप समझते हैं कि ये जो हुकूमत बनाई जाएगी, will it be stable and it will stay there for some time? It will not be stable. Let me again explain to you. It will not be stable for the simple reason that this government will be another kind of PDM.
यानी पीएमएलएन और पीपी को मिला के अंडर नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टरशिप बनाई जाएगी, एंड दे विल रिप्रेजेंट द अमेरिकन कैंप. As I told you, there are two world camps. तो यूएस यूरोप का कैंप को रिप्रेजेंट करती है आर्मी, और ये पीडीएम भी रिप्रेजेंट करती है उसको. मगर आप समझते हैं कि रशिया चाइना की जो अलायंस है वो चुप बैठेगा? वो कमजोर लोग हैं, वो भी बड़े पावरफुल लोग हैं. दे हैव ह्यूज रिसोर्सेज, हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज, और वो बगल में है. चाइना तो पाकिस्तान के बगल में है, अमेरिका तो बहुत दूर है. तो दे हैव इमीडिएट एक्सेस. वो आपकी सीपीईसी बनाया, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना दिया, और बहुत मार्केट को पेनिट्रेट किया हुआ है. चाइनीज कोई मामूली लोग नहीं है. तो ये लोग अमेरिकन समझे कि हमने बाजी मार दी, ऐसा नहीं है. तो अभी ये स्टेबिलिटी नहीं रहेगी आपके यहाँ, क्योस चलेगा बहुत अच्छा. और पीपल आर solidly with Imran Khan, 80-90%. That's They the will thing. not, they will not accept this result. Yes. वो बिल्कुल fraudulent result है ये रिगिंग करवा के सारे. क्योंकि देखिए आपके जो इंस्टीट्यूशन हैं, इदारे हैं, चाहे जुडिशरी, चाहे इलेक्शन कमीशन, पुलिस वगैरह, ये सब आर्मी जैसा कहती है वैसा करते हैं. क्योंकि आर्मी उनके सर पे बंदूक रख देती है कि करो ये, वरना गोली मार देंगे. जो जस्टिस काजी फैदी साहब कहते हैं भाई मेरी जान बख्शो, मुझे गोली मत मारो, जो जैसा कहो वैसा मैं फैसला दे देता हूँ. सारे आपके जुडिशरी, सारे आपके इलेक्शन कमीशन, सारे पुलिस जैसा आर्मी कहती है वैसा करते हैं. वो आर्मी इज अंडर कंट्रोल ऑफ अमेरिका, ऊपर से ऑर्डर आता है. मगर चाइना और रशिया चुप नहीं बैठेंगे. तो लिहाजा कहने का मतलब स्टेबिलिटी नहीं रहेगी. आपने जो सवाल पूछा, मेरा जवाब कोई स्टेबिलिटी नहीं. और प्लस इकोनॉमिक क्राइसिस भी है बड़ी भारी, बड़ी भूखमरी है, बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट है. तो all these things coupled together will mean that there will be a long period of instability and chaos in Pakistan. Thank you. सर अगर आपसे मेरा यही क्वेश्चन है, मैं यही पूछना चाह रही थी आपसे, बिकॉज यू आर इन पाकिस्तान एंड यू कैन सी इट वेरी क्लोजली एज वेल, कि ये जो गवर्नमेंट बनने जा रही है, as you know, the people of Pakistan voted hugely, heavily in favor of Imran Khan and Pakistan Tehreek-e-Insaf, and openly this has, like, votes have been snatched from them. एक साइड पे तो वो आप, मैं समझती हूँ कि वो भी एक साफ जरा वो सामने आएंगे. दूसरी बात ये है कि ये जो गवर्नमेंट बन रही है, आप उसको कितना अर्सा देखते हैं कि वो वहां खड़ी रहेगी, और फिर इकोनॉमी हमारी देखें कितनी कितनी बुरी हालत में है. व्हाट विल हैपन, व्हाट्स द फ्यूचर? अच्छा देखिए, एक बात ये है कि मौजूदा जो गवर्नमेंट बनेगी ना, वो यानी स्टेबिलिटी लाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं है. पीडीएम जो वन बनी थी, पीडीएम वन के असरात हमने देख लिए कि मुल्क की इकोनॉमी तबाह होगी, क्योंकि एजेंडा इंटरनेशनल था उनका. डॉलर उनसे कंट्रोल नहीं हो सका, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में डिस्पैरिटी रही. हम गुड गवर्नेंस ला नहीं सके. हमने सिर्फ अपनी जाती लूट मार को कैसे बचाना था वो किया, और टारगेट था कि इमरान खान को कैसे गिराना है. जी. मैंने वैसे तरजीह दी है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को प्रिंसिपल स्टैंड अपनी जगह रख के, मोरालिटी के प्रिंसिपल अपनी जगह, लेकिन अगर उनके साथ एक गवर्नमेंट बनाई जाए, एक सोल्यूशन की तरफ जाया जाए, और 5-6 महीने का एक तजर्बा किया जाए, ताकि ये ना हो कि पीडीएम 2 बना के फिर इनको दे दें, पाकिस्तान फिर अपना गहरी खाई में गिर जाए. अब आप अभी जमात इस्लामी के साथ, मुत्तहदा मजलिस मुस्लिमीन के साथ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में तो जहां लोगों ने कर लिया, लेकिन यहाँ यानी अगर दोबारा आप दे देंगे, मेरे तक जो बात है, यानी इस मुल्क को देखें, चार बहुत बड़े इश्यूज है. एक तो मुल्की कर्जा जो है हाँ जी. गैर मुल्की कर्जा बढ़ चुका है, और उसका सूद और इंटरेस्ट इतना दे रहा है, पाकिस्तान बोझ तले दब गया है. फिर हमने टैक्स बेस जो बढ़ा नहीं रहे, कलेक्शन हम इतनी बढ़ा नहीं पा रहे. फिर तीसरा इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट में डिस्पैरिटी, यानी हमें एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा रहे, एक्सपोर्ट बढ़ानी है वो हम नहीं बढ़ा पा रहे. चौथा जो इशू है वो गुड गवर्नेंस का. गुड गवर्नेंस हमेशा इकोनॉमी के साथ डील करती है. तो ये वो चार बड़े मामला है, और इनके पास कोई तजर्बा नहीं है. खुद इसहाकदार जो इसको लेके आना चाह रहे थे, उनके अपने 2 बंदे जो हैं, वो चाहे मिफ्ता इस्माइल ले लें, चाहे एक्स मिनिस्टर फाइनेंस
या गवर्नर बैन नहीं ले, तो गवर्नर सिंध थे, उन सब ने उनकी पॉलिसी को कंडेम किया है और अपने आप को डिसोसिएट किया है इस हवाले से। अब सवाल यहाँ पर ये है कि इस मुल्क में स्टेबिलिटी लाने के तरीके क्या हैं? एक तो मैंने बता दिया है, यानी वो उसका कुछ बैठे देखिए नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाना। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को बिल्कुल नहीं बनता, उसके हाथ में लाइक नहीं है। वो रांदा दरगाह का लफ्ज़ अगर मैं इस्तेमाल करता हूँ उसके लिए, और जब तक उसको वहाँ से माफ़ी नहीं मिली, तब तक कोई चांस नहीं है। जी शहबाज शरीफ के साथ बिलावल भुट्टो काम नहीं करना चाहते। रावत भुट्टो समझते हैं कि शहबाज शरीफ में इतनी कैपेसिटी नहीं है। तो अभी रिसेंट जो आया उन्होंने कहा कि अगर हम उनके साथ जाते हैं, कोalition बनाते हैं, तो हम काबीना में नहीं बैठेंगे। वज़ीर आज़म भी हमारा नहीं होगा। सदर आसिफ अली ज़रदारी इंटरेस्टेड है बनने में चेयरमैन सेनेट या डिप्टी चेयरमैन सेनेट या स्पीकर या डिप्टी स्पीकर या चारों सूबों के गवर्नर, उसमें वो लोग इंटरेस्ट होंगे। वो चाहेंगे कि इस तरह के हालात बनाए जाएँ। देखना ये है कि क्या हमारा मुल्क कामिल है इस तरह के दोबारा तजर्बों का, जिन्होंने इस मुल्क की इकॉनमी का सत्यानाश कर दिया हो। सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी जो है वो अदालतों के ऊपर है, लेकिन अब तक अदालतें अपना वो बोझ नहीं उठा सकी और अदालतों ने हमारे बहुत अच्छे जजेस जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस सैयद मुज़ाहिर अकबर नकवी इस्तीफा देंगे। लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस शाहिद जमील साहब ने इस हालात में जो कि वजह इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा है, एक्सटर्नल प्रेशर बहुत ज़्यादा है, के हालात में सामने इस्तीफे दे दिए हैं। तो ये वो मामलात हैं जो आपके सामने हैं, डिपेंड करता है कि अब आगे बढ़ा कैसे जाए। जी एंड अदर क्वेश्चन इज के इमरान खान की जो केसेस हैं देखिए वो तो सारे ही सबको ही पता है कि वो सही नहीं है, लाइक फेक केसेस हैं। व्हाट्स हैपनिंग टू हिज केसेस एंड व्हाट इज गोइंग, मतलब व्हाट्स द फ्यूचर सर? देखिए एक बात तो है कि इमरान के खिलाफ जितने केसेस हैं सारे फेक एंड फैब्रिकेटेड हैं। यानी उनमें उनमें अगर बेस देखी जाए तो बेस तो कोई हमें तो नहीं नज़र आती है कि बेस क्या है उसके अंदर। मिसाल के तौर पर पहले प्रोविडेंट फंडिंग का एक केस बनाया गया कि जनाब इन्होंने पैसा बाय से पीटी से लिया है। वो क्या हुआ? वो भी जाली साबित हो गया, उसमें कुछ ना मिला। फिर अल्टीमेटली अल्टीमेटली ये आगे तोशाखाना में, अब तोशाखाना में सिर्फ इमरान खान नहीं है, बाकी जितने भी है मैंने सारी डिटेलें निकलवाई हैं वहाँ तक। उसमें ट्रायल में सज़ा दे दी कि 3 साल की, वो ट्रायल वो सज़ा सस्पेंड हो गई, उसमें डिस्क्वालिफिकेशन आज भी बरकरार है। उसके बाद फिर उन्होंने एक और तोशाखाना साइबर केस शुरू किया, फेक एंड फैब्रिकेटेड, कोई उसमें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की वायलेशन नहीं, कोई ऐसी चीज़ जो हो कि वो वायलेशन हुई हो, कुछ नहीं ऐसी वायलेशन हुई है और अल्टीमेटली उसमें भी सज़ा दे दी गई। फिर अपना तोशाखाना का नैब ने कहा वो भी फेक एंड फैब्रिकेटेड था, उसमें भी सज़ा दे दी गई। फिर इसी तरह हदूद का अपना इज्जत निकाह के केस में भी सज़ा दे दी गई। इन सब में अपीलें पेंडिंग पड़ी हुई हैं, अपीलों में इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हम। दीजिए लेकिन 9 मई के वाक़ियों में कुछ की ज़मानत हो गई हुई है, कुछ में नई गिरफ्तारियाँ डालना चाहते हैं। तो 200 के करीब फेक एंड फैब्रिकेटेड केसेज़ हैं, जो ये हम उनको डील कर रहे हैं, देख रहे हैं, वजह क्या है? और हम समझते हैं देखिए अगर कोई फ्री एंड फेयर गवर्नमेंट आएगी, तो इन केसेज़ को मेरिट पे जल्दी डिसाइड किया जाएगा। अगर यही पीडीएम की हुकूमत रहेगी, ये प्रेशर डालेंगे और ये केसों को मेरिट पे डिसाइड नहीं होने देंगे। फिर वो जो वर्कर पकड़े गए हैं, कई झूठे पकड़े गए हैं, कई हो सकता है ठीक भी हों, लेकिन वो वाले मामलात को भी देख रहे हैं। अवामी मसाइल को भी हल देखना है, तो हमें अभी अभी बहुत दरिया अबूर करने हैं। तो इमरान खान को हम कब तक बाहर आता देखते हैं सर? जितने भी केसेज़ हैं ना, अभी एक केस में सस्पेंशन हो चुकी है, 3 केसों में तोशाखाना में, साइफर में और अपना काम मनोज साहब आपको 10 मिनट के बाद मैं कॉल करता हूँ, ठीक है। आपको 10 मिनट के बाद कॉल करता हूँ, तो 10 मिनट के बाद, अब 10 मिनट के ग्लोबली बाद कॉल करता ग्लोबली हूँ। क्या सिचुएशन है इस वक्त इंटरनेशनली? इज देयर अ प्रेशर on you know the authorities or institutions that do you think there's a chance that anything can be fixed? देखिए, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है, प्रेशर तो अपनी जगह मौजूद है। जी प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर भी है, इंटरनल प्रेशर भी है। केसेज़ मेरिट पे मैं नहीं समझता कि ये केसेज़ पे हुए हैं। उनमें एक में सज़ा सस्पेंड हो चुकी हुई है, तोशाखाना में जो न इलेक्शन कमीशन ने किया था। साइफर के केस में सज़ा सस्पेंड होने वाली पड़ी है। फिर तोशाखाना दूसरा केस है, फिर इज्जत वाला केस है। 3 केसों में सज़ा सस्पेंड होने वाली है।
लेकिन उसके अलावा 9 मई के कुछ और वाक़ये में गिरफ्तारी डाल रही है। पहले हालाँकि गिरफ्तारी तो एक ही दफ़ा डलनी चाहिए थी, लेकिन ये बदनीति के साथ गिरफ्तारियाँ मुख्तलिफ है। तो ये कहीं न कहीं प्रेशर मौजूद है, इंटरनल भी है और एक्सटर्नल भी है। और अगर स्टेबल गवर्नमेंट आ जाएगी, तो उम्मीद है फिर इंटरनल एक्सटर्नल प्रेशर खत्म हो जाएगा। जी। और ये जो पीटीआई है, इसकी मतलब गवर्नमेंट नहीं बनने के चांसेस, और देयर इज अ चांस? इस वक़्त सिंगल सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो है नहीं। अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी इकट्ठी हो जाती हैं, तो फिर तो चांस फिर उन्हीं का बनेगा। और अगर होंगे, तो फिर हमारा चांस है। लेकिन वजह ये है कि हमारा इरादा यही है कि मैं समझता हूँ, जो मैंने पार्टी को तजवीज़ किया है, वो मैंने यही किया पीपल्स पार्टी के साथ अगर इत्तेहाद कर लें तो मुनासिब है। हेलो। अच्छा सर, मरकंडे सर, आपका क्या व्यू है इसके ऊपर कि क्या फ्यूचर देखते हैं कि ये जो गवर्नमेंट है, हाउ लॉन्ग इट कैन गो, एंड व्हाट डू यू सी दैट व्हाट विल बी द फ्यूचर देन आफ्टर दिस काइंड ऑफ गवर्नमेंट? हाँ, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये सब लोग मानते हैं कि 80-90% पाकिस्तानी वर सॉलिडली इन सपोर्ट ऑफ इमरान खान, जी एंड डेमोक्रेसी मीन मेजॉरिटी रूल, majority were in favor of Imran Khan. जी But the Pakistani army, under the dictation of the US government, is adamant on not allowing Imran Khan to come to power at any cost. जो भी तिगड़म करना पड़े वो करेंगे, मगर इमरान खान को पावर में नहीं आने देंगे। और आप जानती हैं, आर्मी इज द रियल पावर इन पाकिस्तान। तो लिहाजा आप देखिए, यहाँ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट हो गया बिटवीन द आर्मी एंड द पीपल। आर्मी के साथ अमेरिका खड़ी है, पीपल के साथ रशिया और चाइना खड़े हैं। पीपल देखिए अभी निहत्थे लग रहे हैं आपको। ये कहते हैं ना, पावर ग्रोज आउट ऑफ द बैरल ऑफ अ गन, और गन तो आर्मी के पास है। तो मगर चाइना और रशिया भी दे विल सपोर्ट अ गुरिल्ला वॉर। गुरिल्ला वॉर होने जा रही है, सिविल वॉर होने जा रही है चाइना पाकिस्तान में, क्योंकि द चाइनीज एंड रशियन विल नॉट टेक इट लाइंग लो कि जहां मैसिव सपोर्ट है इमरान खान का, फिर भी उसको आप प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने देंगे। क्यों? एक तरफ आप कहते हैं डेमोक्रेसी है पाकिस्तान में, तो डेमोक्रेसी होती तो 200 सीट आती इमरान खान की, आउट ऑफ 266 सीट्स at least 200 would have, because 80-90% people are supporting इमरान खान। मगर आपने उसका आधा कर दिया, 100 कर दिया, ताकि वो कंबाइन जो बने, पीएमएलएन और पीपीपी का कंबाइन बने, वो पीटीआई से ज्यादा हो जाए और उनकी गवर्नमेंट बने। ये पूरा खेल है। मगर आप समझती हैं कि चाइनीज और रशियन बेवकूफ हैं और वो कमजोर हैं। वो अभी देखिए, पीपल जब सॉलिडली सपोर्ट कर रही है इमरान खान को, अब धीरे धीरे देखिए हथियार आने लगेंगे चाइना और रशिया से पाकिस्तान में, और जनता को हथियार मिलेगा और गुरिल्ला वॉर शुरू होगी। ये जो आर्मी जनरल बैठे हैं ना, इनकी बीवी बच्चे हैं, इनकी बीवी मानिए गई शॉपिंग करने या कहीं सोशल विजिट पे, तो उस पर पब्लिक हमला नहीं करेगी उनकी बीवी बच्चों पे। ये सब महफूज है। ये जो आर्मी जनरल्स हैं बड़े अपने को अक्लमंद समझते हैं कि मैंने बंदूक तान दी, पाकिस्तानी पब्लिक पे हमने बंदूक तान दी, मगर ये भूल गए कि इनके बीवी बच्चे हैं और कल से उन बीवी बच्चों पे हमले शुरू होंगे। देखिएगा, दे आर नॉट सेफ, द वाइफ एंड चिल्ड्रन। बच्चों को स्कूल जाना है तो पब्लिक पे रास्ते में गुरिल्ला अटैक्स होंगे। व्हाट अबाउट द फैमिली? डू यू थिंक देयर फैमिलीज आर सिक्योर? ये अपने को बहुत तीसमार खां समझते हैं जो आर्मी जनरल्स, कि हमने बाजी मार दी और दबा दिया इमरान खान को। अभी देखती चलिए, बड़ा वहां पे बवाल आने वाला है पाकिस्तान में, गुरिल्ला वॉर और फिर सिविल वॉर, जैसे अफगानिस्तान में हुआ, जैसे वियतनाम में हुआ। ये सब होने जा रहा है। वेरी बैड टाइम्स आर कमिंग। आई एम नॉट हैप्पी अबाउट द प्रोस्पेक्ट। नो वन इज हैप्पी। अरे भाई, मगर आप समझिए इसको इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में समझिए ना। देखिए, दो दो सुपर अलायंसेस में जो टकराव है, दैट इज कमिंग आउट इन पाकिस्तान। एक तरफ अमेरिका और यूरोप, दूसरी तरफ चाइना और रशिया।
इनमें बड़ा दुनिया में मेन स्ट्रगल इन दोनों अलायंसेस में चल रहा है, और उसका डायरेक्ट रिफ्लेक्शन इज कमिंग आउट इन पाकिस्तान। और देखिए ये बढ़ता चलेगा। वेरी बैड टाइम्स आर कमिंग इन पाकिस्तान, आई एम टेलिंग यू। अभी देखिए क्या क्या होता है। रशिया एंड चाइना विल नॉट टेक इट लाइंग लो कि आपने आर्मी ने अमेरिकन ऑर्डर्स पे दबा दिया इमरान खान को और पीटीआई को, जबकि मैसिव सपोर्ट है पब्लिक की। ये नहीं चलेगा। और वो अब वो निहत्ते ज्यादा दिन नहीं रहेंगे। पब्लिक विल नॉट बी अलार्म फॉर लॉन्ग, दे विल स्टार्ट गेटिंग आर्म्स फ्रॉम रशिया एंड चाइना। अभी देखती चलिएगा, जैसे वियतनामीज को रशिया और चाइना से हथियार मिलने लगे थे टू फाइट अगेंस्ट अमेरिकन। अल्लाह रहम करे जी। अमन, इमरान खान की तो तहरीक इज अ पीसफुल तहरीक, मगर अब देखें सर अजहर आपका अरे क्या? भाई आप समझ ही नहीं है, इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ इमरान खान, इट इज अ जी क्वेश्चन ऑफ सुपर पावर्स क्लैशिंग इन पाकिस्तान। अच्छा पाकिस्तान में इमरान खान इज जस्ट a part of the China-Russia alliance. And China-Russia alliance are very powerful. ये सिर्फ इमरान खान की बात नहीं है। जी जी ये दो सुपर पावर अलायंसेस में जो टकराव दुनिया में चल रहा है वो प्ले आउट हो रहा है पाकिस्तान में आजकल। आप समझ पाई मेरी बात? जी जी। सर अजहर आपसे मैं पूछना चाह रही हूँ कि आप समझते हैं कि जिस तरह ये 64% हमारी यूथ है, हाउ दे विल रिएक्ट आफ्टर ऑल दिस? Do you think it's controllable, or like it will be managed very well, or like how will it be controlled? And मैंने बताया second मैंने question बताया देखिए। question is sir कि आप समझते हैं कि people, वोटिंग दोबारा होगी? नहीं नहीं देखिए then I अब don't think so it's going to be controlled by anybody. यूथ जो है वो अब अपना बिल्ली जो है वो थैले से बाहर आ चुकी है, और आवाम जो है ना वो अब आराम से नहीं बैठने वाली है। मैं तो अभी अभी जो तहरीक का प्रोग्राम कर रहे हैं उसी वक्त आया कि पीपल्स पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि वो नून लीग की गवर्नमेंट का हिस्सा बनेंगे और अपना कोई काबीना में नहीं जाएंगे, बाकायदा सपोर्ट करेंगे। इसका मतलब है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब अपोजिशन में बैठेगी और नून लीग जो है वो हुकूमत करेगी। Oh, बाद में तो अब हम मेरा जहाँ तक ख्याल है बड़ी मैसिव हम कैंपेन शुरू करेंगे, सड़कों पे निकलेंगे आने वाले दौर के अंदर, और यूथ जो है ना नया अपना हक मांगेगी। मैं अब नया इलेक्शन होता हुआ देख रहा हूँ। that's I'm very thankful to both of you. You both have given a really good opinion according to your knowledge and vision. It आई was वांटेड टू ऐड वन थिंग इफ यू परमिट। एक yes, चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ। yeah, देखिए, why is it that 80-90% people of Pakistan are supporting Imran Khan? It जी is because basically he is an honest man. वो जी चाहता तो इंग्लैंड में रहता, बड़ी आराम से रहता, मौज करता इंग्लैंड में। जी जी मगर वो आया है यहाँ टू सर्व द पीपल ऑफ पाकिस्तान। उसने एक फर्स्ट रेट कैंसर हॉस्पिटल, क्या नाम था, शौकत खानम बनाया, और वो उसकी कोई एसेट्स नहीं है अब्रॉड। जबकि ये जो पीडीएम वाले हैं, दे आर अ गैंग ऑफ डेकॉइट्स। ये आपके जो ये क्या है, नवाज शरीफ वगैरह, ये पैनामा पेपर्स में सब रिवील हुआ है, पैनामा पेपर्स एंड अदर मटेरियल। इन्होंने तो बिलियंस ऑफ लूट लिया पाकिस्तान को। लुटेरे हैं, गैंगस्टर हैं भाई। और ये आप आसिफ वो भी ले जरदारी लेंगे। वर नोन एज मिस्टर 10%, ये सब गैंगस्टर्स हैं। दैट इज व्हाई द पीपल ऑफ पाकिस्तान नो दैट बेसिकली इमरान खान इज ऑनेस्ट। I mean, थोड़ा सा आपने तोशा खाना आना में इधर, अरे दिस इज अ ट्रिवियल मैटर। तोशा खाना मैटर इज ट्रिवियल कंपेयर्ड टू द मैसिव लूट बाय दिस पीएमएलएन एंड पीपीपी। ये लुटेरे हैं, गैंगस्टर्स हैं। ये आपके नवाज शरीफ और ये क्या नाम उनकी बेटी मरियम नवाज, ये सब ये भी इन्वॉल्व है पैनमा पेपर्स में। मरियम नवाज बड़ी अपने को खूबसूरत समझती है ना, वो लुटेरी है, गैंगस्टर है, शी इज अ थीफ, चोरों की सरदारनी है। तो कंपेयर करिए, इमरान खान बेसिकली ईमानदार आदमी है, इसीलिए 80-90% पीपल ऑफ पाकिस्तान आर सपोर्टिंग हिम। जी जी पाकिस्तान के लोग बेवकूफ नहीं है, वो सपोर्ट करते हैं। बेसिकली ईमानदार आदमी है वो। किस लिए बताइए पाकिस्तान में पड़ा है? वो चाहता है इंग्लैंड में बैठ के मौज करता। जी आप लोगों के बीच में है, कहीं जा नहीं रहा है। जबकि
ये भाग गए थे, नवाज शरीफ इंग्लैंड भाग गए थे, इसके इमरान खान के कोई खास एसेट्स नहीं है अब्रॉड, तो इसलिए पीपल आर सपोर्टिंग हिम. People of Pakistan are intelligent people. They know basically he is there to serve them. ठीक है, उसमें कुछ खामियां हैं, मगर nobody is perfect in the world. But compare करिए with PDM people, they are a gang of dacoits. That is why he is solidly supported by 80-90% people of Pakistan. और समझ लीजिए कि उसको आप दबा नहीं सकते, क्योंकि अब उसके साथ चाइना और रशिया भी आ गया. देखती चलिएगा क्या क्या होगा अभी. जी जी, बहुत शुक्रिया सर, आप इंसाफ के साथ खड़े होते हैं और बॉर्डर्स क्रॉस करके हमारे दिलों तक पहुंचते हैं, हमारे अवाम के दिलों तक पहुंचते हैं, इंसानियत के लिए बात करते हैं. और सर सिद्दीक जो हैं वो भी एक स्ट्रॉन्ग आवाज हैं. हमारे अब जो भी हालात हैं पाकिस्तान में देखें, ही इज बहादुर हैं, दलेर हैं और ईमानदार, सच के साथ खड़े होने वाले हैं, और वी आर प्राउड ऑफ हिम एज वेल. मैं आप लोगों का टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ. आप लोग जो हैं वो, वी आर प्राउड ऑफ यू wherever you are, and at this time standing with the justice, truth is a great thing, because very very few people are standing with truth and justice. मैं आखिर में यही कहूंगी कि हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे वो दिन कि जिसका वादा है, जो लोहे अजल में लिखा है. हम देखेंगे जब जुल्म सितम के कोहे गिरां रूई की तरह उड़ जाएंगे, हम महकूमों के पांव तले जब धरती धड़ धड़ धड़केगी. इंशाअल्लाह जीत जो है वो सच और हक की होगी. शुक्रिया बहुत. थैंक यू जी. Assalamu alaikum ji. अस्सलाम वालेकुम.